So, well, good morning, everyone. And today again, we are conducting one more class related with this optimization of data analytics. And let's moving ahead. So, I wish to say you that all kind of notes are available on your Drive link. So, if you go to your Drive link, you would be able to really find out. You would be able to see this. I'm showing you here. Like here, you go to your WhatsApp description. And in this WhatsApp description, you would be able to identify all these folders available there. And if you click on these folders, so the notes are available here. We are continuously posting all kind of notes here. All unit 1, unit 2 related posts are here. And today again, I am also going to post few questions related with the unit 2. Now it is up to you that how you are identifying your problems and how you're just checking out that you are getting some sort of a difficulties. So all these difficulty has to be taken care. And we are teaching you, we are giving all the informations to you, but most important part is you need to identify where you are just getting yourself stuck. So this is what exactly the target. I'm simply again showing you that how we are putting up. This is copying it here. So unit 1, all notes are available. Unit 2, all things are available here, and that will be uploaded. Yeah, this is available here. So by this unit 2, you can easily go for. Unit 1 question and answers are also available that you can easily go for. These are the unit 1 question and answer methods, and everything is available there. Isn't it like this? So that is available. So I'm also downloading it, and in the form of some questions, in the form of some answers, it is available. It's getting downloaded, and once it will be downloaded, I'm sharing you here. Yes. Sometimes it's take time. So we are going for MDS 212. Good. So here in this assignment, you'll really find out so keep studying for your examination, keep studying for your CT examinations, and where you are just finding the difficulty, please notify us all those difficulties. We shall be able to help you. We will be able to rectify, because if we are talking about the master's program, the master's program is somewhat related with the self-understanding and the development of self-concepts. So I hope so. So once you are just getting any sort of a difficulty, you would be able to tell us. So this is also I'm just showing here. Expecting my screen is visible. And this is, so if you go here, you would be able to find out in unit 1 and unit 2, all the questions are available here that can be seen. I'm going to show you it here. Wait a while. So stop. I'm going to stop sharing it. Yeah. Yeah. Just a minute. Getting open. Yes. So this, I'm going to show you the unit number 2 notes and as well as the unit number notes. Yes, it is available here. Closing.
Yes. So here I'm sharing my screen. Yeah, this is the. So if you see here, again, I have just given everything related to you, and that all are very well defined in a well structured format. So you need to only understand and develop your concepts. So as much as concept you can develop, you can ask all those kind of questions to me easily. So there would not be a big problem. There won't be anything. But you need to go through at least all these things and study it back. And once you're finding the difficulty, so if you see here, what is a gradient descent method that is available, the question here. So he have just given a certain kind of an example here that can be also taken. See, this is basically the gradient descent method we have developed here. The cost function, what is the cost function? So we are giving everything in terms of some questions and giving an answer of it. What is the cost function, starting point, how we are going to do it, direction, the learning rate. We are defining all these kind of things are here. Types of the gradient descent method that is available here. That also we are doing. I'm marking your attendance as well. So that is all. So it is showing basically the types of the gradient, what kind of gradient descent methods are there. Batch gradient descent methods are here, stochastic gradient descent methods are here, mini batch gradient methods are here, challenge of the gradient descent method. So if you see, this is a complete kind of a like package for you in which you would be able to understand each and every question and everything related to this one. Similarly, the same we have done for the unit number 1 as well. हमने unit number 1 के लिए भी यही काम किया हुआ है. You are getting every, we are getting every topic there. And with respect to all these topics, you would be easily able to identify the things related with the kind of questions you are looking for. So that is all here available, and you would be able to understand how we are going to use what is the coordinate descent method is there. So every question and every topic is being covered here in this one, and this cover topics are available here. We are defining, we are giving information related with every topic. We are giving like conceptual understanding of each and every topic here. Most important part is here, you need to understand, you need to ask the question where you are getting the difficulty. That is more important part, because when you would be able to identify and according to you, अगर आपको लगता है कहीं पर कि आपको डिफिकल्टी है कि यू आर गेटिंग स्टक योरसेल्फ, आप कहीं पर स्टक करते हैं, in that situation please put your question in the WhatsApp, put your question to telephonic conversation, or to just come to the directly when we are coming to the classes. वो क्लासेस के टाइम पे भी आप इस चीज के बारे में आप बात कर सकते हैं. So there is no issue, no challenge. You only need to understand and you only need to read it properly. So showing again that last, that how we are going to for this. This is a gradient descent method, and again I am also showing for the unit one notes and how we are getting identified all this in the question and answer format. And that is the same for assignment for you. So you pick up these questions. We are giving a certain kind of open book solutions to you. You create your own assignment, and all these questions are assignment to you as well. ये भी आपके लिए सब assignments भी हैं. तो as an assignment आप इनको submit भी करिए. मतलब आप क्वेश्चन लीजिए और क्वेश्चन लेने के बाद में जो सोल्यूशन हमने दे रखा है उस सोल्यूशन को भी आइडेंटिफाई कीजिए. यू गो थ्रू द मोर बुक्स पे जाइए और आप वहां पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और सोल्यूशन आइडेंटिफाई कीजिए. रिसर्च पब्लिकेशंस के अंदर देखिए, किताबों के अंदर देखिए, ई बुक्स के अंदर देखिए. सो whenever you are just getting such kind of a difficulty, you need to find out all these answers. आप इनको ढूंढिए और ढूंढने के बाद में फिर आप उनका सोल्यूशन लिख के हमें सबमिट कीजिए. तो ये एक असाइनमेंट काम हो जाएगा. व्हेन यू विल डू दिस प्रैक्टिस, जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे, देन श्योरली आप ये मान के चलिए, जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे होंगे तो श्योरली आपका ये कंटेंट और ये टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा. So I'm downloading this one and will showing you. So last previous classes we have already covered all the possible topics of the unit number 1 जो हमने बात करी थी. Similarly I'm showing you it again for the same purpose. मैं दोबारा से इसको आपको दिखा देता हूँ.
जी। तो ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कल मैंने बात करी थी, जिसमें सबको समझा दिया गया था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकते हैं। फिर हमने बात करी थी कि अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप किस तरीके की होती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फिर हमने डिस्कस करी थी इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के बारे में। देखिए ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन किया था। यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, पढ़ के भी देखिएगा, दोबारा रिवीजन भी करिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, इवन दैट यू फाइंड द डिफिकल्टी। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आई एम जस्ट गेटिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम हियर, मुझे कुछ परेशानी आ रही है, किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आ रही है तो इन दिस सिचुएशन आप ये चीजें दोबारा से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। मैनी मोड्स आर देयर, आप किसी भी मोड में ऐसे पूछें, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन जो शेड्यूल क्लासेस हैं आपको उन क्लासेस के अंदर भी आ सकते हैं। और इवन दैट इफ यू वांट सम स्पेशल क्लासेस टू बी अरेंज्ड, दैट कैन बी आल्सो अरेंज्ड, so no issue at all, no challenges are there. The following are the useful property of the convex optimization problem. Every local minima is a global minimum. Optimal set is convex. If it is an objective function, is strictly convex, then problem has at most one optimal point. ये मतलब properties हैं, ये बता रहा है कि every local minimum is a global minimum. अब local minimum और global minimum आपको समझ में आना चाहिए। Local minimum का मतलब होता है कि when you are looking for a certain kind of a feature, ये एक सबसेट के अंदर में डिफाइंड मिनिमा है। ये पूरे के पूरा जो ओवरऑल सेट है, जितनी भी वैल्यूज उसकी पॉसिबल है, सारे कॉन्स्टेंट्स को कवर करते हुए, उन सब में डिफाइंड पॉइंट मिनिमा है। ऐसा हो सकता है ना कि सपोज कीजिए आप किसी फ्लोर पर खड़े हैं, तो आपने कहा कि मैं अपने फ्लोर पर सबसे नीचे खड़ा हूँ। समझिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने फ्लोर पर सबसे नीचे खड़े हैं, मतलब आप किसी टेबल के ऊपर नहीं है, किसी बेड के ऊपर नहीं है, कहीं नहीं। बट क्या वो मिनिमा कहाँ है? तो वो मिनिमा कहलाएगा लोकल मिनिमा, क्योंकि आप सेकंड फ्लोर के फ्लोर पर खड़े हैं, तो आप उस वो कहलाएगा मिनिमा, क्योंकि सेकंड फ्लोर के ऊपर टेबल भी है, चेयर भी है, एंड समथिंग एल्स इज देयर, स्टेयर्स भी है, कुछ और स्टूल भी रखा हुआ है। आप उनमें से किसी ऊंची जगह पर नहीं खड़े। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ग्लोबल मिनिमा की बात करूँ, तो ग्लोबल मिनिमा में क्या वो लोकल मिनिमा एडजस्ट करेगा? नो, देयर माइट बी अ ग्राउंड फ्लोर एज वेल। गॉट इट? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि एवरी लोकल मिनिमा इज अ ग्लोबल मिनिमम। तो इस कंडीशन में होने चाहिए कि जितने भी हम लोकल मिनिमास की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के बीच में जो शेप आती है, उस शेप में हमारे जो लोकल मिनिमास हैं वो मिनिमा ग्लोबल मिनिमास होने चाहिए। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेट ऑफ वैल्यूज ले रहे हैं वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी कॉन्वेक्स होना चाहिए भाई। अब कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर आप जा रहे हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आपका कॉन्वेक्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आपका कॉन्वेक्स नहीं है, तो इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि फिर आप उनको डिफाइन नहीं कर पाओगे, फिर आप मिनिमम पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये चीज इस तरीके से फिर हमने बात करी थी कि अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्लासेस हो सकती है कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग से लेके स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी थी, एसओसीपी के बारे में बात करी थी, सेकंड ऑर्डर कोन प्रोग्रामिंग की बात करी थी, है ना, सेमी डेफिनेट प्रोग्रामिंग की बात भी करी थी, एसडीपी की बात करी थी, और कोनिक प्रोग्रामिंग की भी बात करी थी। सारे के सारे सबसेट है, तो आपको इस डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सारे के सारे लीनियर प्रोग्रामिंग से ही रिलेट करते हैं। ये बात भी हमने कल करी थी। फिर हमने कहा था कि कुछ ऐसे कॉमन एप्लीकेशंस डिफाइन कर लें जहां पर ये यूज होते हैं। पोर्टफोलियोज हो गए, केस रिस्क एनालिसिस में यूज कहते हैं, ऑप्टिमल एडवर्टाइजिंग में यूज कहते हैं। आजकल डेटा एनालिटिक्स का सबसे बड़ा यूज तो ऑप्टिमाइज एडवर्टीजमेंट के अंदर है, मतलब आपको डेटा लेना है और डेटा लेने के बाद में टारगेट यूजर को भेजना है। सपोज कीजिए आपने किसी के पास में डेटा खरीद लिया, और डेटा खरीदने के बाद में आपसे कहा कि भाई मुझे तो कार बेचनी है, लेकिन उसमें सारे का सारा जो डेटा था वो डेटा किसका था? देयर विल बी सो मेनी पीपल्स, बहुत सारे लोग वहां पर थे। अंडर ऑल दिस सिचुएशन, अब इतने सारे लोग वहां पर अवेलेबल थे, तो क्या हुआ? इतने सारे अवेलेबल लोगों में से आपने बेचनी थी केवल कार। तो कार बेचनी थी तो उसको आइडेंटिफाई करना, निकालना डेटा को किसी सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर के ऊपर। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था कि केवल मुझे कार खरीदने वाले लोगों को ही इंटरेस्टेड। तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते थे जो केवल कार की विजिट करने गए हो लेकिन वो कार खरीदनी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डेविएट कर सकते हैं।
है ना, समझ रहे हैं ना आप ये चीज। तो ये जो डेविएशन है, ये ये डेविएशन वेरियस केसेस में आता है, तो ये हम पढ़ चुके थे। कल हमने कोनिक प्रोग्रामिंग के बारे में बात करी थी, अगर आप लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये सारी कोनिक प्रोग्रामिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हमने बात करी थी एसडीपी की, कि एसडीपी क्या होता है। सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग इज सब फील्ड of concern with the optimization of linear objective function. A user specified function that is a user wants to maximize or minimize over the intersection of the cone or positive semi-definite matrices or an affine spaces or spectrahedrons. तो ये सेमी डेफिनेट प्रोग्रामिंग का मतलब है, ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का ही सब फील्ड है। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का ही एक सब फील्ड है। कंसर्न है ऑप्टिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका लीनियर होना चाहिए, जो कि यूजर ने खुद अपनी तरफ से स्पेसिफाई किया हुआ है, उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहता है ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ अ कोन और पॉजिटिव। ये कोन की जो बात करते हैं, कोन का मतलब शेप, मतलब मिनिमम के पॉइंट पे भी तो जा रहा है और मिनिमम के पॉइंट पे भी तो ग्रेजुअल पॉइंट्स आगे डेवलप होंगे। तो इसके लिए सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग इज रिलेटिवली न्यू फील्ड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन which is growing interest of several reasons. Many practical problems in operation, research, and combination optimization can be modeled or approximate as semi-definite programming problem. In automatic control theory, अब और देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीधी सी बात को यहाँ डिफाइन किया, इज अ न्यू फील्ड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन व्हिच इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ सेवरल रीजन. Many practical problem in operation, research, and combination optimization can be modeled or approximate as semi-definite programming problems. In automatic control theory, SDPs are used in context with the linear matrix inequalities. SDPs जो हैं are in fact of a special case of cone programming and can be efficiently solved by interior point methods. ये सारे के सारे methods हैं, ठीक? Or linear programs, convex, quadratic program can be expressed as SDP via the hierarchical of the SDP solution, and polynomial optimization problem and approximately semi-definite program has been used in optimization of complex system. In recent years, some quantum queries complexity problem have been formulated in terms of semi-definite programming. वो भी यूज किए जाती है। समझ में क्या है? समझ में सीधी सी बात है, इस पूरी की पूरी थ्योरी को और समझने की कोशिश करें। आप सबसे पहले समझिए कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है, उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। अब जब उस एग्जिस्टिंग प्रोसेस को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं किसी भी पैरामीटर के ऊपर, तो आपने एक अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया। वेल, आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया कि साहब ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। नाउ वी आर टॉकिंग बिकॉज दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज बीन मेड, आपने कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेड किया हुआ है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू पुट अ लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर दैट। आपको उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करनी है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होगी, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फायदा है कि फिर तो आप जो चाहो सो कर लो, काम खत्म, आपकी डिपेंडेंसी तो किसी पर है ही नहीं। यानी कि उसकी डिपेंडेंसी कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वेरिएबल्स की होगी। जो वेरिएबल्स आप चूज कर रहे हो उन वेरिएबल्स के साथ में हो सकता है कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हो हो सकता है ना, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आपके हो। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स की आप बात कर रहे हैं, जिन कॉन्स्टेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंट ही तो डिफाइन करेंगे एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो वो ये कहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एक लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेमी डेफिनेट जो प्रोग्रामिंग है, उस लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफएक्स यूज किया डिपेंडिंग वेरिएबल्स के साथ में, विद कॉन्स्टेंट्स के साथ में, इसका टारगेट ये है कि इसको ऑप्टिमाइज करना। तो ये कह रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं रिसर्च की, कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइजेशन की, जो इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इसने यूटिलिटी डिफाइन करी। फिर उन्होंने कहा कि इसमें क्या किया जाता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल थ्योरी के अंदर भी यूज किया जाता है, लीनियर मैट्रिक्स की इनइक्वालिटीज यूज कर ली जाती है, मैट्रिक्स जो होती है यूज करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो कोन प्रोग्रामिंग जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, ये कोन प्रोग्रामिंग का ही अपने आप में एक फॉर्मेट है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फैक्ट। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप कोई आपसे बात करता है, कहता है कि एसडीपी क्या है, तो एसडीपी अपने आप में सीपी का ही एक सबसेट है एंड कैन एफिशिएंटली इंटीरियर पॉइंट मेथड, मतलब उसके इंटरनली जो पॉइंट सबसेट डिफाइन किए गए हैं, सबसेट पॉइंट की वैल्यूज को पुट करके मिनिमा और मैक्सिमा निकाल सकता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर प्रोग्राम्स हैं, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम से कॉन्वेक्स की क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड एसटीपी। तो लीनियर प्रोग्राम एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, जितनी भी लीनियर प्रोग्राम है, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी सॉल्व की जा सकती है यहाँ पे, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एसटीपी
and via hierarchies of SDP programming has been used in optimization of complex system in recent years. Some quantum query complexity problem have been formulated in terms of semi-definite programming. ठीक तो ये अब उन्होंने कहा सेमी डेफिनेट प्रोग्रामिंग हैज बीन अप्लाइड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। कई सारी चीजें आपके साथ कंबाइन की जा रही हैं, वहां पर सेमी डेफिनेट प्रोग्रामिंग हैज बीन यूज्ड। तो अब उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि कितना इसका रेशियो क्रिएट हो सकता है, क्या हो सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन। ये तो ये है, तो उन्होंने कहा एसडीबी इज आल्सो यूजिंग ज्योमेट्री। किस लिए यूज की जा रही है? ज्योमेट्री टू डिटरमाइन द टेंस्क्रिटी ऑफ द ग्राफ्स, एनालाइज द कंट्रोल थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी में भी इसका बहुत यूज होता है। इलेक्टिव कॉन्फिशिएंट में यूज किया था, तो सेमी डेफिनेट इस तरीके से यूज की जाती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन। अब स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Structural optimization is a simulation-driven design. Let's team identify the explore the high potential design and reject low potential one earlier in development of the cycle. तो ऑप्टिमाइजेशन में स्ट्रक्चर बेस किया जाता है, मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्यूशन का आपने एक आर्किटेक्चर डेवलप किया, उस आर्किटेक्चर डेवलप्ड आर्किटेक्चर पर आपने क्या किया, एक सर्टेन काइंड ऑफ मॉडल क्रिएट किया। तो जिस मॉडल का पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और जिसका है उसको रिजेक्ट किया जाता है। Generated lightweight manufacturing concept, they are also used to define the problem. Structural optimization has over the past decades qualifying as an important tool in the design process. The method can be grouped into the topology, size, shape and optimization. अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर यही समझने की बात। पूरा पूरा प्रोसेस है वो, किस पर क्या टोपोलॉजी आप इसकी यूज कर रहे हो, बहुत जगह ये टोपोलॉजी यूज की जाती है। एंड साइज एंड शेप एंड ऑप्टिमाइजर, द objective of the optimization can be minimized and stress weight or compliances for a given amount of material boundary condition. The method can be utilized to design ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर हम बात कर रहे थे। The method can be utilized to design the engineering structure, but it can also be used for tailor microstructures. तो ऑप्टिमाइजेशन का केवल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है। अब तो ऑप्टिमाइजेशन किसी भी चीज की अगर आप मॉडलिंग कर पा रहे हैं ना, किसी भी चीज की मॉडलिंग, बहुत सारे एग्जांपल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उन एग्जांपल्स को किस तरीके से लेना शुरू करते हैं। देखिए फिर मैं कहा ऑप्टिमाइजेशन कभी भी मेन प्रोसेस नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन इज नेवर अ मेन प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरलुकिंग टू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है जो दूसरे प्रोसेस को ओवरलुक करके देखता है। कैसे देखता है? एग्जिस्टिंग प्रोसेस जितना भी आपका चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, कार मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है। अब कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है 30 दिन के अंदर सपोज कीजिए 30 कारें निकालती है, हाई क्वालिटी हाई ग्रेड क्वालिटी निकालती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अब इसमें कोई एक नया सुपरवाइजर, नया इंजीनियर साहब आते हैं और उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर 20 कारें निकाल रहे हैं तो क्या हम हो सकता है 28 दिन के अंदर 20 कारें निकाल सकते हैं? नाउ द वर्क हैज बीन स्टार्टेड। अब यहाँ पर काम शुरू हो गया। क्या काम शुरू हो गया सर? प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। क्या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का? क्या सेव करना है? मिनिमम टाइम के अंदर सेव करना है। 30 दिन की जगह उसको 28 दिन के अंदर लेके आना है। आ गई ना बात समझ में? इस तरीके का। अब इसके लिए हमने जब स्ट्रक्चरल का एग्जांपल लिया था, स्ट्रक्चरल क्या कहता है कि जो भी स्ट्रक्चर हमने मेंटेन किया है काम के प्रोसेस का, जैसे कार है, सबसे पहले उसका बॉडी क्रिएट हो रहा है, बॉडी क्रिएट होने के बाद में उसका प्रोसेस है कि नेक्स्ट प्रोसेस वो कहाँ जा रहा है, वो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है कि यहाँ पे टायर लगेंगे जाके, कहीं पे इंजन माउंट होना है, कहीं पे कलरिंग पार्ट होना है, तो ये सब स्ट्रक्चर है। तो जब हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जहां पे हाई पोटेंशियल का काम करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव, वहां पर हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, और जहां पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हम प्रोसेस को रिड्यूस करके हटा सकते हैं। या जहां पर सपोज कीजिए इंजन माउंटिंग हो रही है, वहीं पर हमने दूसरी असेंबली क्रिएट कर दी, इंजन माउंटिंग के साथ में टायर की भी हो गई, सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पे काम कर सकता है, प्रोसेसेस पे। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक ये कहता है कि व्हाट इज स्मूथनेस इन ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन की स्मूथनेस कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? व्हाट इज द स्मूथनेस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन। अब स्मूथिंग प्रॉब्लम is basically smoothing is a statistic process and other context is a problem of estimating an unknown probability density function recursive over the time using incremental incoming measurements। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही लाइन है। क्या लाइन है? कि स्मूथिंग प्रॉब्लम है
इसका मतलब है कि जो एस्टिमेट करना है, किसको एस्टिमेट करना है, अननोन प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पीडीएफ को डिफाइन करना है रिकर्सिवली ओवर द टाइम यूजिंग इंक्रीमेंटल इनकमिंग ऑफ मेजरमेंट। मतलब जिस किसी भी प्रोसेस पर आप जा रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का जो भी प्रोसेस है, पीरियड ऑफ टाइम में उस प्रोसेस के अंदर किस तरीके से इंक्रीमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, दैट इज व्हाट द स्मूथिंग प्रॉब्लम। इट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम डिफाइंड बाय द नॉर्बर्ट विनर, किसी ने जो डिफाइन किया था उनके साइंटिस्ट का नाम है। Smoother is an algorithm that implements solution to this problem, typically based on recursive Bayesian estimation। तो उन्होंने कहा रिकर्सिव, किसी चीज के बार 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 रिकर्सिव होने पर उसकी स्मूथनेस के बारे में, द स्मूथनेस प्रॉब्लम इज क्लोजली रिलेटेड टू द फिल्टरिंग प्रॉब्लम, बोथ व्हिच आर स्टडीड इन Bayesian स्मूथिंग थ्योरी। तो जब रिकर्सिव प्रोसेस है तो हो सकता है कि किसी एक प्रोसेस के अंदर आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। Smoother is often a two-pass process composed of forwarding backward passes. Consider doing estimation about an ongoing process based on incoming observation. When new observation arrive, estimation about the past need to be updated to have a smoother estimation of the whole estimated path until now taking this one. तो ये अपने आप में एक समझ की बात है ना, ये कंसेप्ट एक अच्छा हो गया ना कि क्या है इसमें होता है, तो समझने की बात है और देखने की बात है, समझने और देखने की बात है कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्टीमेटली प्रोसेस क्या है, स्मूथिंग प्रोसेस। स्मूथिंग प्रोसेस का मतलब कि एनी प्रोसेस व्हिच यू आर कंडक्टिंग, हम जो प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं उस कंडक्टिंग प्रोसेस को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन कंडक्टिंग प्रोसेस जो आपका है, उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन कंडक्टिंग प्रोसेस को किस तरीके से आप नेक्स्ट मेजरमेंट, इंक्रीमेंटल मेजरमेंट के लिए स्मूथ कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि रिकर्सिव बेसियन एस्टिमेशन थ्योरी यूज कर लीजिए और बड़े मजे से स्मूथिंग कर लीजिए, है ना, स्मूथर। So, smoother is often a two-pass process composed of forward and backward passes. Consider doing estimation about an ongoing process based on incoming observation. When the new observation arrive, estimation about the past need to be updated to have a smoother estimation of the whole estimation path until now taking into the account of new observation. Without a backward pass, the sequence of prediction is an online filtering algorithm does not look smooth. In other words, retrospectively, it is as we are using a future observation for improving estimation of a point in a past, when those observations about future points become available, note that the time of estimation, which determines if the observations are available, can be different to the time of the point of the prediction is about, that is subject to the prediction of retrodiction. The observation about the later times can be used to update and improve the estimation about earlier times. Doing so lead to the smoother looking to the estimation. तो आपको समझ में आया और प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या समझाया जा रहा है, इस प्रोसेस के अंदर यही समझाया जा रहा है कि स्मूदर जो प्रोसेस है इट्स अ टू पास प्रोसेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना, इट इज टू पास प्रोसेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास। Considering the doing the estimation when about ongoing process based on incoming observation, इनकमिंग के ऑब्जर्वेशन जो आ रहे हैं और जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एक को बोला जाता है प्रिडिक्शन और दूसरे को बोलता है रिट्रोडिक्शन, यानी कि जो हो चुका है और जो होने वाला है। When new observation arrive, जब नया ऑब्जर्वेशन आता है, estimation about past needs to be updated to have a smoother one। मतलब कोई नया ऑब्जर्वेशन आया और पुराने में कोई किसी तरीके की जरूरत थी, कोई रिक्वायरमेंट थी, that has to be updated in this, that's it। मतलब होता है ना, जैसे किसी भी आप प्रोसेस की, मैंने आपको कहा ना कार बनाने का जो प्रोसेस 28 दिन का प्रोसेस है, तो 28 दिन के प्रोसेस में आप उसको लाना चाहते हो सकता है आपने किसी स्टेप के ऊपर ओवर एक्सरसाइज किया और ओवर एक्सरसाइज करने से वो स्टेप थोड़ा सा टिपिकल हो गया या हो गया, तो दैट इज व्हाट द पास्ट ऑब्जर्वेशन। और ये पास्ट ऑब्जर्वेशन जब नई कार बनने जाएगी तो उसके साथ में एज एन इनपुट फीड कर दिया जाएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रोसेस की स्मूथनेस डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, so when new observation arrive, estimation about the past need to be updated to have a smoother estimation of the whole estimated path until now. Without a backward, the sequence of prediction is an online filtering algorithm does not look smooth. In other words, retrospectively, as if we are using a future observation for improving the estimation of a point in past, when those observations about the future points becoming available, note that the time of estimation
which determines which observations are available can be different to the time of the point of the prediction is about. That is a subject for the prediction. तो जो predict किया था और जो observations आ रहे हैं उनके बीच के differences भी देखने पड़ेंगे. The observation about later time जो बाद के observations हैं can be used to update, वो use किए जाएंगे किस लिए, and improve the estimation about the earlier times. अब पुराने doing so leads to smoother looking estimation. अब हर बार जब आप इस तरीके करेंगे जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे जो पास्ट के ऑब्जर्वेशंस है उनको फीड किया जाएंगे फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस है लेटर ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो इससे जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट स्टेज में वो स्मूथर होता जाएगा. तो यहाँ खेल जो है वो सारा का सारा प्रेडिक्शन और रेट्रोडिक्शन का. तो प्रेडिक्शंस जो होंगे वो डिपेंड करेंगे कि रेट्रोडिक्शंस के एस्टिमेशंस पर. तो स्मूथिंग एस्टिमेशन एंड स्मूथिंग कन्वोल्यूशन डिस्पाइट बीइंग लेबल्ड एट द सेम इन इंग्लिश लैंग्वेज can be mean totally mathematical procedure. The requiring problem they solve the different. The concept are distinguished by the context. So convolution or estimation. The smoothing in sense of convolution is simple. For example, moving average, low pass filtering, convolution with kernel blurring, using Laplace filters in this image is often used for especially this one. Estimation, the smoothing problem. Like Norbert winner, this one Kamal filter which is this way. तो स्मूथिंग प्रॉब्लम है जो एस्टिमेशन बेस्ड होती है ये दोनों ही तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर यूज की जाती है. तो व्हाट इज द सेपरेबिलिटी इन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी अपने आप में कि हाउ वी कैन से, ये भी एक छोटा सा अपने आप में टॉपिक है. सेपरेबल प्रोग्रामिंग इज डील विद सच नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये लास्ट टॉपिक है सेपरेबिलिटी के बारे में. In which the objective function as well as the all the constraints are separable. सारे के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज किए हैं और जो भी आपके कांस्टेंट है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है, मतलब ओवरलिंक्ड नहीं है. In the decision making situation, the non-linear profit or the cost functions are related by relatively smooth curves rather than sharp curves. Thus the breaking point is obtained on such. इस जगह पर क्या होगा, एक ब्रेकिंग पॉइंट आपको मिल जाए. In such case, the nonlinear objective function with smooth curve for it may be approximated by series of piecewise linear segments. समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और जो उसके कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके सेपरेबल है. जब आप डिसीजन लेने जाएंगे, मेकिंग अ डिसीजन, नॉनलीनियर प्रॉफिट और कॉस्ट फंक्शन आर रिलेटेड बाय द रिलेटिवली स्मूथ कर्व रादर देन शार्प कर्व. तो जब आप डिसीजन लेने जाएंगे तो इस टाइप की सिचुएशन में आपके कर्व में स्मूथनेस आएगी, शार्प नहीं. बस ब्रेकिंग पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन डिस्कशन और आप यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट ले पाएंगे. ठीक है. Such error can be reduced much by increasing the number of linear segments. Piecewise linear approximation can be done for convex as well as the concave functions. Separable programming problem in NLP which use objective function can be expressed as a linear combination of several different values. Some of this. तो मुझे लगता है कि ये मैंने लगभग आपको जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में पूरा ब्रीफ आइडिया दे दिया. इस तरीके से आप यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छे से ब्रीफली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. और आपको लगता है कि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके आ रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं. तो वजह से पढ़ते जाइए. और कंटेंट डेटा अगर आपको चाहिए होगा सो वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ डेटा विद अस. उतना ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे. ठीक है, आप उन्हें पढ़ें, देखें, समझें और कोई डाउट अगर किसी तरीके का है तो बताएं. So from my side it's done. Anything else you wish to know, I shall be happy to give you.